When we are discussing environmental quality, it not only includes the air quality of the area, but also we are discussing here the water quality, the soil quality and the noise quality. So environmental quality जो है एक holistic term है, broader level पे हम बात करते हैं, लेकिन उसके बहुत से एरियाज़ हैं, बहुत से एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर हम बात करते हैं कि हवा अच्छी होनी चाहिए, पानी ठीक होना चाहिए, सॉइल सूटेबल होनी चाहिए, शोर कम होना चाहिए. सो दीज आर एक्चुअली द क्वालिटीज़ ऑफ द अर्बन प्लेस और इवन द एरिया वेयर वी आर लिविंग. So these are the things which are very important for the management of the regions. Now, when we are discussing air pollution, which is one of the component of the environmental quality, we can say here the air quality. Air pollution is a major environmental risk to life or health. By reducing air pollution level, countries can reduce the burden of disease from smoke, or even through smoke. We can say here the heart diseases जो हैं वो इसमें important है, lungs cancer हैं, and both chronic and acute respiratory diseases हैं. So air pollution ना सिर्फ आपकी जो है वो environment को सफ़र कर रही है, उस urban area को सफ़र कर रही है, बल्कि उसका impact human health के ऊपर भी है, जिसमें mostly जो heart की diseases हैं, even skin के cancers हैं, respiratory diseases हैं, वो इसमें शामिल है. Now, WHO air quality guideline provide an assessment of the health effect of air pollution and threshold for health harmful pollution level. So वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ स्टैंडर्ड हमें दिए हैं जिसको हम फॉलो करें तो एयर को हम टू सम एक्सटेंट इनहेल के काबिल बना सकते हैं, यानी वो एनवायरनमेंट सूटेबल फॉर लिविंग हो सकता है. Ambient, which is also called the outdoor air pollution in both cities and rural areas, was estimated to cause 3.7 million premature deaths worldwide in 2012. So इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह एयर पोल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ जो डेथ्स हैं, प्री मेच्योर डेथ्स हैं, वो 2012 में 3.7 मिलियन थी. So that is one of the area where we can do a lot. हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है because this is actually the event which is produced by the human activities. Some 88% of these premature deaths occurred in low and middle income countries, and the greatest number in the WHO Western Pacific and Southeast Asian region. So mostly belongs to the developing areas. Less developed areas में या underdeveloped areas में इस तरह के hazard बहुत मौजूद हैं, क्योंकि जो quality of fuel है वो अच्छा नहीं है, quality of living अच्छी नहीं है, sanitation के problem है, upper जो surface area है that is used for the dumping of the waste, so industrial waste है, कोई recycling नहीं है. So that's why the low income groups जो हैं countries के वहाँ पर इनकी ज़्यादातर जो है वो प्रीमेच्योर डेथ्स हमें मिलती हैं. Policies and investments supporting cleaner transport, energy efficient housing, power generation, industry and better municipal waste management would reduce the key sources of the urban outdoor air pollution. So government should make a policy कि एयर पोल्यूशन के लिए ये स्टैंडर्ड हैं, फॉल्टी व्हीकल्स जो हैं वो रोड पे नहीं होनी चाहिए, फाइन होना चाहिए, अगर 2 स्ट्रोक है तो उसको चेंज इनटू द 4 स्ट्रोक. सो दीज आर एक्चुअली द थिंग विच आर द फैक्टर बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज या एमिशन होती है, और वो एमिशन जो है सिटी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है. सो सेम इज़ द केस विद द म्यूनिसिपल वेस्ट, जिसमें लिक्विड भी है एंड सॉलिड वेस्ट भी है. गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है एंड इवन पर्सनल ड्यूटी हमारी भी ये है कि हम अपने जो गार्बेज है, जो हमारा जो वेस्ट है, उसको प्रॉपरली मैनेज करें. और गवर्नमेंट की जो है डंप्स होने चाहिए जहाँ पर ये सॉलिड वेस्ट को, लिक्विड वेस्ट को जो है प्रॉपरली डंप किया जाए.
Reducing outdoor emission from household coal and biomass energy system, agricultural waste, incineration, forest fire and other activities would reduce the rural and peri-urban areas air pollution sources in developing regions. Most of the area where we have the impact of the air pollution is the urban place, जहाँ पर population center बन रहे हैं, माइग्रेशन हो रही है जिसकी तरफ लोग बाहर से रूरल एरिया से रूरल इकोनॉमी से या डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड एरिया की तरफ आ रहे हैं सो वहाँ मैनेजमेंट के इश्यूज हैं सो दैट्स व्हाई प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से वी हैव सर्टेन एरियाज विच आर अंडर द polluted zones. Reducing outdoor air pollution also reduce emission of CO2 and short-lived climate pollutants such as black carbon particulate matter and methane, contributing to the near and long-term mitigation of the climate change. So one of the very important pollutant जो है that is CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस है और मोस्टली लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और जब उससे काउंटर रेडिएशन होती हैं तो उससे एयर टेम्परेचर बढ़ जाता है सो हम देखते हैं कि ये डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हम रिसीव करें बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. Now this slide shows the smoke cloud of industrial place. So most of the जो गैस यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है इंडस्ट्रियल यूनिट से जो हमारे स्टेशनरी यूनिट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड है विच आर एक्चुअली द एब्जॉर्बेंट और वो सिटी टेम्परेचर को हाई कर देते हैं इवन इंडस्ट्रियल जो सेंटर है वो हाई हो जाता है. मोस्ट ऑफ द व्हीकल बिलोंग्स टू द प्राइवेट ओन एरियाज यानी हमारे पास जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो ज़्यादा हो गई हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है एंड दी व्हीकल्स आर मोस्टली ऑन द टू स्ट्रोक इंजन्स सो दोज आर एक्चुअली द फॉल्टी व्हीकल्स को हम अगर 4 स्ट्रोक में चेंज करते हैं या वहाँ पर उनको फाइन किए जाते हैं so that is one of the area where we can control the pollutants of the air. So this is one of the area where we have the implementation of the rules and regulation. Now this slide shows the solid waste which is actually openly available over the surface of the earth and this is open is also called the open dumping. It also produces certain pollutants which are injurious to the human health. So it contaminates the clean air and this air contaminated air is very harmful to the human life or even the plant life. Urban smoke is one of the hazard of the developed regions and those are actually the mega cities of the world. अब यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में हमें स्मोक मिलती है यानी जिसको धुआं कहते हैं और वो धुआं जो है वो फॉग के साथ मिक्स हो जाता है एंड इसको हम स्मोक कहा कहते हैं. This smoke is dangerous for the city life क्योंकि इसमें विजिबिलिटी कम हो जाती है एरोसोल ज़्यादा एयर में होने की वजह से वो सेंटर का काम करते हैं और इस तरह से वहाँ पर मॉइस्चर जो है एक्यूमुलेट हो जाता है और वो मॉइस्चर जो है हमें एयर में जब मिलता है तो दैट इज़ कॉल्ड स्मोक and that smoke is dangerous for the transportation or even the visibility उसकी जो है वो कम हो जाती है and we see कि बहुत से इससे हादसात होते हैं और ये ना सिर्फ अर्बन एरिया में मौजूद है बल्कि ये रूरल इन्वायरमेंट में भी है क्योंकि रूरल इन्वायरमेंट में डस्ट पार्टिकल हैं डस्ट पार्टिकल भी वहाँ पर स्मोक का बायस बनते हैं. Now this is the situation of the United States जिसमें नॉक्स जो है उसकी 2002 की प्रोडक्शन है मोस्टली इट वाज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन 54% एंड देन इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ हैं 22% देन फ्यूल कंबंशन है 17% इंडस्ट्रियल सोर्सेज हैं 5% एंड अदर आर 2%. सो इट मीन्स व्हीकल जो हैं दैट इज़ एक्चुअली द मेन कॉज बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एंड नॉक्स इज़ वन ऑफ द greenhouse gases of the air. Now here we have the world map and the darker area shows the maximum deaths due to the indoor smoke from the solid fuel. Mostly belongs to the developing areas or the areas where we have the low income group.
अब जो डार्क शेड है दैट एक्चुअली हैज़ 400 deaths per year, and the lighter shade जिसे येलो में है that is actually between 50 to 100 deaths per year because of the indoor pollution. इंडोर पोल्यूशन में वी हैव डोमेस्टिक वेस्ट लाइक रेफ्रिजरेटर से गैसेस निकलती हैं, माइक्रोवेव ओवन से गैस निकलती है, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं, सो वो ट्रैप हो जाती है विद इन दी हाउस। और क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है, जब मेंबर ऑफ द फैमिली है वो इनहेल करते हैं एंड दे फेस द सेम काइंड ऑफ डिजीज़। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि घर जो है वहाँ पर वेंटिलेशन होनी चाहिए, जो ट्रैप हो गई है एयर घर के अंदर विच इज़ कॉल्ड द इंडोर गैस, उसको जो है वो हमें फ्लैश आउट करना चाहिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द एरिया वेयर वी कैन कंट्रोल आवर डेथ्स। So in addition to outdoor air pollution, indoor smoke is a serious health risk for some 3 million people who cook and heat their houses with biomass fuel and coal. So not only the outdoor smoke is dangerous for the health, but indoor smoke is also very dangerous because we during the winter season हम देखते हैं कि लोग जो हैं घर को गर्म करने के लिए या हीटअप करने के लिए उसे जो है जब मुख्तलिफ फॉसल फ्यूल का यूज़ करते हैं लाइक कोल का या वुड का, तो उससे जो गैसेस निकलती हैं वो हेल्थ के लिए बड़ी ख़तरनाक हैं, एंड दैट काइंड ऑफ एरिया मस्ट बी जो है वो कंट्रोल। और उसको जो है हमें देखने की ज़रूरत है कि वाई द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द पोल्यूशन ऑफ द एयर। सो दिस इज़ एक्चुअली द एरिया वेयर वी कैन डू अ लॉट। गवर्नमेंट पॉलिसी भी इसमें बड़ी मैटर करती है।